बता दें कि जम्मू से दूसरी तस्वीर है। उधर आपको यह भी जानकारी दे दें कि 2 बजे तक कार्यवाही को स्थगित किया गया था, लेकिन अब कार्यवाही दोबारा शुरू हो चुकी है। सीधे आपको ले चलते संसद की कार्यवाही में। तो देखिए, राज्यसभा लोकसभा की कार्यवाही दोबारा एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। इससे कुछ देर पहले जब कार्यवाही शुरू हुई थी, कुछ घंटों पहले, तो आपने देखा कि किस तरह से एग्रेसिव मोड में बीजेपी नजर आई थी और कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा था। गंभीर विषय उठाया था कि एक वरिष्ठ नेता कांग्रेस के, जिन्होंने देश के बाहर जाके विदेशी धरती पर अंतर्राष्ट्रीय अलग देशों से कहा कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है और ये मांगा कि यूरोप के देश या अमेरिका के देश भारत में आके हस्तक्षेप करें, भारत में आके वो भारत के लोकतंत्र में हस्तक्षेप करें। ऐसे व्यक्ति के ऊपर इस सदन में घोर निंदा करनी चाहिए। एक तरफ भारत G20 की प्रेसिडेंसी लेके बैठा, एक तरफ पूरे विश्व में भारत का बोलबाला है। पूरे विश्व में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के ऊपर चर्चा हो रही है। यहाँ तक कि इनके इटली के प्रधानमंत्री, इनके नेता को ये देखना चाहिए कि इटली के प्रधानमंत्री स्वयं कहती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पूरे विश्व में सबसे लोकप्रिय नेता है। पूरा विश्व उनकी तरफ आकर्षण से देख रहा है कि वो इस दुनिया की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। दूसरी तरफ भारत का एक नेता इस सदन का, लोकसभा का सदस्य जाके विदेश में भारत की बदनामी करते हैं। मैं समझता हूँ उन्होंने जब तक माफी नहीं मांगी, जब तक इस सदन की, देशवासियों की और जुडिशरी की, प्रेस की, हमारी सेनाओं की, हमारे इंस्टीट्यूशंस की, इलेक्शन कमीशन की, सबकी जब तक माफी नहीं मांगी, तब तक ये देश उनको माफ नहीं करेगा। Honorable members, now honorable members, leader of the opposition. Sir, I have brought the point of order. Leader. 1 minute. I have brought the point of order, and this point of order is raised in 19th June 1967 when V.V. Green was presiding over. Honorable LFG, I have given floor. 1 second. I have given floor to Honorable LFG. I would like please. to add that it would be a good rule to observe that the members of one house should not use the freedom of speech on the floor of the house to make allegations or charges against the members of the other house. This is the ruling given by V.V. Green in 97. The another thing is that 17th March 1983, when in the Lok Sabha, Sri Advani, who was then member of Rajya Sabha, protested against it and requested the chair not to allow the allegation to go on record. Accordingly, the vice chairman inter alia observed prima facie Mr. Advani is right, and before referring to a member of the other house, one has to exercise a lot of care and caution. It is not allowed. ये अदानी जी का है, रेज किए, इसके पहले V.V. Green ने रूल दिया, इसीलिए जो कुछ भी उन्होंने कहा, it should be expunged. It should be expunged. Yes, these are the rules, and you have to follow. And you, sir, I honor. Many a times you told we have to follow the rules. I have given this ruling. Kindly expunge his words from the proceeding. Please sit down. Sit down. सर
Honorable members, leader of the opposition has raised a point of order. And one second, I'll hear all concerned. Leader of the opposition has raised a point of order to the effect that no member of this House participating in any manner whatsoever can raise an issue regarding a person who is not a member of the House and certainly one who is member of the other House. Honorable Leader of the Opposition has placed reliance on two very distinguished rulings. I would first get an input from the House if you wish to make, and then seriously take this call, because this is very, very important. And Leader of the Opposition has, with clarity, given out his point. Before that, Digvijay Singh ji. 1 second, please. तो देखिए, दोनों सदनों की कार्यवाही लगातार जारी है और जमकर हंगामा यहां पर बरप रहा है। दोनों की तस्वीरें आप देख रहे हैं और सामने आपने देखा कि लीडर ऑफ अपोजिशन की तरफ से पॉइंट ऑफ ऑर्डर फिलहाल लाया गया कि जो सांसद इस भवन में मौजूद है ही नहीं, उसके बारे में बात करना ठीक नहीं। रिपोर्ट ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स, किसी का नाम नहीं लिया। One second. I had called senior member Digvijay Singh ji. Since Digvijay Singh ji did not avail the opportunity, but I call upon Digvijay Singh ji now to make his input, and then I'll hear it. Honorable members, it is Mr. Digvijay Singh. सर, ये पहली बार हाउस में देख रहे हैं हम लोग। मुझे भी 45 साल हो गए हाउस में। जहाँ रूलिंग पार्टी हाउस में चलने दे रही है, ये जवाबदारी रूलिंग पार्टी की होती है कि सभा का संचालन सही ढंग से हो। ये पहली बार मेरे लाइफ 45 साल के जीवन काल में ऐसी परिस्थिति दिख रही है कि रूलिंग पार्टी हाउस में चलने दे रही है। वन मिनट और सर, 1 मिनट और सर, लीडर ऑफ द हाउस। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया। मुझे लगता है इनके दिल में खोट है, जिसके कारण इनको लग रहा है और अब वो एसोसिएट कर रहे हैं किसी को इस विषय के साथ। मैंने तो नाम नहीं लिया था। अब ये किस विषय में और किसको एसोसिएट कर रहे हैं, ये जरा स्पष्टीकरण करें। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन स्पष्टीकरण करें कि उन्होंने किसके ये सेंटेंसेस बोले, किसकी वजह से ये रूलिंग किसको अप्लाई करती है। कि मैंने तो कोई नाम लिया नहीं है। आई हैव नॉट टेकन एनी नेम। तो ये किसको एसोसिएट करते हैं? कौन है वो व्यक्ति जिसने देश का अपमान किया? कौन है वो व्यक्ति जिसने सेना का अपमान किया? मैंने तो कोई नाम लिया नहीं। तो यानी ये जानते हैं कि किस व्यक्ति ने इस देश और देशवासियों को और सदन का अपमान किया है, इसलिए हम उनसे माफी मंगवा रहे हैं। अगर ये कहते हैं कि उनके नेता इस प्रकार के बयान देते हैं और ये सदन में नहीं डिस्कस करना चाहिए, पहले एक्नॉलेज करें कि किसकी जिक्र हो रही है। Dr. Keshav. The LOP has very clearly given you the rulings, two rulings, according to their very with clarity. Now I don't think there's a need for you to take any inputs, but decide on the basis of what he has submitted and remove it from the court. But one fact I am telling you, this shouting will not help you. If I am going there, most of you people might have gone to many of the universities. If you have not gone, it is your fate. I am sure people go and gone abroad. Most spoke to universities. Don't you speak the truth?
Do you go to universities to speak on what is academic is different from truth. I have gone many a time, countless time, and we speak the truth. Don't I condemn the pernicious practices of Hinduism? Don't I condemn? तो देखिए, आपको बता दें कि लोकसभा की कार्यवाही स्थगित हो चुकी है। जमकर हंगामा यहां पर हुआ है और आपको बता दें कि कल तक के लिए कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा है। उधर राज्यसभा की कार्यवाही लगातार जारी और यहाँ पर भी आपने देखा मल्लिकार्जुन खड़गे हो, पीयूष गोयल हो या फिर दिग्विजय सिंह आपस में आप देखिए किस तरह से एक दूसरे पर बात पलटवार करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि लोकसभा की कार्यवाही स्थगित हो चुकी है। कल सुबह 11 बजे तक के लिए कार्यवाही को स्थगित किया गया। ऐसा है, आक्रोश की गुंजाइश इस सदन में नहीं होनी चाहिए। सुनिए, ऐसा है, so far, honorable members, so far, what I have been able to understand from the four honorable speakers, leader of the House, leader of the opposition, senior member Digvijay Singh ji and Dr. Keshav ji, that with respect to the statement made on the floor by leader of the House, a point of order has been raised by the honorable leader of opposition, placing reliance on two rulings of distinguished chair. It's with clarity. Both Dr. Keshav and Digvijay Singh ji have supplemented it. Leader of the House has taken a stand that he did not name anyone. Sir, one second. Honorable members, I find that Modi चोर होगा। The House stands adjourned to meet at 11 a.m. on March 14, 2023. I will give my ruling on the issue tomorrow. तो देखिए, राज्यसभा की कार्यवाही भी कल तक के लिए स्थगित हो गई। इससे पहले आपने देखा लोकसभा की कार्यवाही कल तक 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई। अब बड़ी खबर आपको बता रहे, राज्यसभा की कार्यवाही भी कल तक के लिए स्थगित करनी पड़ी, क्योंकि आपने देखा दोनों सदनों के अंदर, दोनों संसद भवन के अंदर किस तरह से जमकर हंगामा बरप रहा है। राहुल गांधी के उस बयान को लेकर केंद्र सरकार की मांगे कि राहुल गांधी यहां पर आकर माफी मांगे, जो आपने देश विरोधी बात विदेश में जाकर कही। वही आपने मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर भी सुना होगा, उन्होंने साफ तौर पर पॉइंट ऑफ ऑर्डर लाया और कहा कि जो व्यक्ति, जो सांसद इस संसद भवन का मेंबर है ही नहीं, उसको लेकर चर्चा यहां पर नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, दोनों सदनों की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित हो चुकी है। एक तरफ राज्यसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक स्थगित हुई, उधर आपको बता दें कि लोकसभा की कार्यवाही कुछ मिनटों पहले ही कल तक के लिए स्थगित हो चुकी है। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई और आपको बता दें कि आज के दिन जमकर हंगामा बरपा राहुल गांधी के बयान को लेकर। एक तरफ जहां केंद्र सरकार विपक्ष पर पलटवार यानी कि कांग्रेस पार्टी पर पलटवार कर रहा है, वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी अदानी मुद्दे को लेकर जमकर घेरी। उधर शहर शहर प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है कांग्रेस कार्यकर्ताओं का, बेरोजगारी, महंगाई और इसी के साथ साथ अदानी मुद्दे को लेकर। लेकिन इसी बीच आपको ये भी बता दें कि कल तक के लिए दोनों सदनों की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा, क्योंकि संसद भवन के अंदर जमकर गहमा गहमी आज देखने को मिली है, वो भी राहुल गांधी के उस बयान को लेकर जो कि उन्होंने लंदन में जाकर दिया था। आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि राहुल गांधी ने दरअसल बयान दिया था वहां पर जाकर कि संसद भवन के अंदर हमें बोलने नहीं दिया जाता, जब मुद्दे उठाना चाहते तो माइक बंद कर दिए जाते। और इसी को लेकर आपने सुना कुछ देर पहले पीयूष गोयल ने क्या कुछ कहा। उससे पहले आपने ये भी सुना था जब सुबह कार्यवाही शुरू हुई थी तो फिर राजनाथ सिंह ने भी कहा था कि राहुल गांधी को आकर माफी मांगनी चाहिए, देश विरोधी बात कही है, उनकी ये गरिमा ठेस पहुंचाती है भारत को। उधर आपने मल्लिकार्जुन खड़गे लीडर ऑफ ऑपोजिशन को भी सुन लिया, उन्होंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर लाया और साफ तौर पर कहा कि राहुल गांधी की बात इस संसद भवन में नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो यहां के मेंबर नहीं है।
तो देखिए, दोनों सदनों की कार्यवाही को फिलहाल कल तक के लिए स्थगित करना पड़ा, लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि आज कांग्रेस पार्टी भी अलग अलग जगहों पर शहर शहर में प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। तो आपको ये बता दें कि 6 अप्रैल तक ये जो सेशन चलना है उसका आज दूसरे चरण का पहला दिन था और पहले दिन में आपको साफ तौर पर नजर आ गया होगा कि किस तरह से बयानबाजियां दोनों पक्षों की तरफ से की जा रही है। ना सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे बल्कि आपने दिग्विजय सिंह को भी सुना, डॉक्टर केशव राव को भी आपने सुना, यानी कि दोनों के दोनों पक्ष एक दूसरे पर हमलावर, एक तरफ सरकार, दूसरी तरफ विपक्ष। लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। दूसरे चरण का आज पहला दिन था और इसी बीच आपने पहले दिन में देख लिया होगा कि किस तरह से कई मुद्दे दोनों के दोनों पक्षों के पास। एक तरफ केंद्र सरकार राहुल गांधी के मुद्दे को जमकर उठा रही, तो वहीं पर विपक्ष बेरोजगारी, महंगाई और इस समेत कई ऐसे मुद्दे जिनको उठाते हुए नजर आ रहा है। कल तक के लिए कार्रवाई को स्थगित किया गया। अब देखना ही होगा कि कल जब सुबह 11 बजे कार्रवाई होती है तो किस पक्ष के पास कौन सी रणनीति होती है। और कल भी इसी तरह से हंगामे के आसार बने हुए हैं, क्योंकि आज भी जमकर हंगामा हुआ। राहुल गांधी ने लंदन में जाकर भारत को बदनाम करने की कोशिश की है और कहा है कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था पूरी तरह से तहस-नहस हो रही है और विदेशी ताकतों को आकर यहाँ पर भारत के लोकतंत्र को बचाना चाहिए। कि भारत की गरिमा पर, भारत की प्रतिष्ठा पर उन्होंने गहरी चोट पहुंचाने की कोशिश की है। और अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह मांग करता हूं कि पूरे सदन के द्वारा उनके इस व्यवहार को खंडन किया जाना चाहिए और उनको ये आपके द्वारा निर्देश दिया जाना चाहिए कि संसद के फोरम पर आकर वह क्षमा याचना करें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ। सभा के सदन के नेता एक सवाल उठाए और वो जो सवाल उन्होंने उठाया था हमारे सदन को कोई संबंध नहीं था, क्योंकि डेमोक्रेसी के बारे में जो राहुल जी ने वहाँ के कॉलेजों में और सेमिनार में कहा था, उस बात को उन्होंने राज्यसभा में उठाया। एक तो रूल्स के तहत ये गलत है। तो देखिए, दोनों सदनों में राहुल गांधी के आरोपों पर सियासी हंगामा जोरदार सुनाई दिया, जिस पर पीयूष गोयल ने राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग की है और इसी पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने पलटवार किया। भारत एक गर्वशाली देश है। भारत लोकतंत्र की जननी है और ये कोई विषय ऐसा नहीं है जिसमें उनके पास कोई भी तत्व हो, किसी भी प्रकार का कोई ऐसा जानकारी हो जिस पे उन्होंने ये आरोप लगाया। भारत में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, भारत में सदन में हर एक मेंबर अपनी बात रखता है और ऐसा व्यक्ति जो ऐसे परिवार से आता है जिन्होंने देश में इमरजेंसी लगाई थी, देश में लोकतंत्र का गला घोटा था, ऐसे व्यक्ति को भारत के ऊपर इस प्रकार की टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। चेयरमैन साहब हमेशा रूल्स की बात करते हैं, तो किस रूल में और एक व्यक्ति और दूसरे सदन का सदस्य है और उसके बारे में यहाँ पर एलिगेशन लगाना और उनके भाषण को अपने ढंग से पेश करना, ये काम सदन का नेता गोयल जी ने किया। तो ये तो बात होगी लोकसभा राज्यसभा की आज किस तरह से कार्यवाही हुई।